एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। मेरे को सभी सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें, एक बार आप अपने बारे में कुछ बताएं। जरूर, अवश्य। मेरा नाम डॉक्टर कर्नल विनोद कुमार भुचर है। आई एम 75 years of age and I am in psychoneurobics, which is a new therapy for treatment and healing of people who are downtrodden or the people who are not well, who got some problems. I normally avoid the word disease and therefore I am trying to avoid that. But the truth is, anybody who is not well can be treated with the help of psychoneurobics. मज़े की बात यह है कि मैंने जो PhD की है इस सब्जेक्ट में वो 70 साल की उम्र में की है. And the point of interest for you all would be I am contemplating and doing another PhD in a subject known as mudras, has mudraएं आज की डेट में. 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज भी किए मैंने एट द एज ऑफ 69 विच आर रिलेटेड विद साइकोनोरॉबिक्स. आप कर्नल लिखते हैं, तो आप कर्नल की पोस्ट से जब रिटायर हुए थे, उससे पहले आपने किस किस आर्मी में किस किस पदों पर अपने आपको सुशोभित किया या समाज को अपनी सेवाएं दी? Okay, I will answer that slightly in detail. I got my commission in the year 1966 at the age of 19 years and 3 months. I became a class 1 Guster officer as a second lieutenant at the age of 19 years, 3 months. Great. Thereafter, normal promotions, pretty fast, doing very well in the professional life. And I became a full colonel and commanded 3rd Yard, the Dograi Battalion. And thereafter, I went in for premature retirement at the age of just 39 years and 3 months. Normally unbelievable. But having said that, it was all because of my checkered career. All the courses which I did in the armed forces, I got the topmost grading. My appointments in various places included as instructor class C in Indian Military Academy, Dehradun. I was also an instructor in College of Combat, Mao. Both are incidentally Class A establishments of the world. I did my long defense management course, which is equated with MBA, as a major, whereas my colleagues at that time, even the colonels, were doing the same thing. Having said all that, I took premature retirement and came out in the civil stream in the year 1987. In the civil stream, well, again, very comfortable in that. I was a vice president of a company, I was a president of a company. Also, I was HR head for 10 years in Whirlpool. So therefore, you will find that, so where the academics is concerned, I was throughout connected with that. Now that's what the Indian Army exposure of mine. I was there in Ladakh, I was there in Mizoram, so seeing the tough times also, but that's what it is all about. आपने जब सिविलियन का जब लाइफस्टाइल शुरू किया था और उसके बाद अब जो आपकी एज है उसमें क्या डिफरेंस, अभी क्या एज ग्रुप है आपका? शुरू में आप यकीन मानिए, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट टू द सिविल वे ऑफ वर्किंग. ऑफिस में भी, सिविल इंटरैक्शन के अंदर में भी, क्योंकि लोगों की सिविल में सोच कुछ भिन्न प्रकार की अलग ही होती है. फौजी ways of working, I would say, is something regulated, something honest, something straightforward and to the point. Anyway, it took me time to adjust, but I did it in the long run. And like I said, I was the HR head for 10 years, so obviously I was in it and not a bad experience. But ultimately, I got used to it, and you can see it now. For the last 15 years, I'm in something known as psychoneurobics, and I'm an international healer. अभी आप जो साइकोन्यूरोबिक्स के विषय के ऊपर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसकी रुचि कब पैदा हुई आपके दिलो दिमाग में? It was about 14 years back, 14 to 15 years. I was just 64 or probably 62 or 63 years of age when I, for some reason, through some friends,
came in contact with Dr. Chandrasekhar, who is my guru. He is the propagator of psychoneurotics. And it was a love at first sight. He immediately told me, sir, you are here to stay. Incidentally, he's from the armed forces, and I happen to be much too senior to him, so far as the army rank is concerned. But anyway, credit goes to that man for having done so wonderfully well in the psychoneurotics field, and he is an asset so for psychoneurotics. Now that's the time when I came in touch with him, and I hooked on to him for next 10 years or so continuously, and was with him, assisting him, and sometimes maybe guiding him, and also learning. And ultimately I did my PhD and number of postgraduate diplomas there only, and I kept doing the Jan Seva. And my philosophy as on date is, or of course last 5-10 years, सिक्फा के बारे में थोड़ा सा कुछ मैं बताएं अब डॉक्टर बताऊंगा। चंद्रशेखर के बारे में। माई फिलॉसफी इज निष्काम। मेरे उद्देश्य जो है वो ह्यूमन सोसाइटी की जो मैं मदद करता हूँ वो है निष्काम, निस्वार्थ, निश्चल और निःशुल्क। तो ये था जहाँ तक मेरी सोच का सवाल है। डॉक्टर चंद्रशेखर के सिक्फा सोल्यूशन के बारे में कुछ थोड़ा सा हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ। सिक्फा का पूरा फॉर्म है स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ऑलमाइटी। Dr. Shekhar is from armed forces. He was in the Air Force, and he had a tough time, and he had actually stomach cancer, liver cirrhosis and hepatitis C, all three combined together. तीनों ही जानलेवा problems बीमारियां होती हैं। He was in the military hospital. He was so bad that his parents and his wife was called. Well, that is the time when he got this enlightenment. That's the time when he suddenly got in touch with the Almighty, and he felt that he can do something for the society by doing, utilizing the three facets which are the colors, the sound, and the mudras. He actually tried it on himself, and believe you me, I have yet to see somebody getting cured of cancer, liver cirrhosis, and hepatitis C. He cured himself of that, and he propagated this new therapy as psychoneurotics. एज ऑन डे आप साइकोन्यूरोबिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या रिसर्च है? अब आप देख लीजिए, पहले तो ये शौकिया था, फिर आई गॉट रोब्ड इनटू इट, आई फेल इन लव विद दिस, I got infatuated by what psychoneurotics is. Great. I went in for 2 postgraduate diplomas in it. I did my PhD, and incidentally, you're talking to a medical miracle myself. It's not eye syndrome. ये अहम वाली बात नहीं है, ये तो एक वास्तविकता है. I was an insulin dependent diabetic for 8 years. I used to take 34 milliliters of Novamix every day, morning and evening, total of 34. Believe you me, for the last 6 years, I have not touched insulin. Wow. Now that's the beauty of the whole thing. This is only with the help of psychoneurotics. So I got into it, I did my PhD, और मेरा इससे प्यार इतना है कि I am doing another PhD into another small little facet which is there of psychoneurotics, which is related to mudras. So अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ? ये क्या चीज़ है ये जो मैं देख पा रहा हूँ आपके आसपास? जी हाँ, ये सभी चीज़ जो आप देख रहे हैं, all these have been written by me. These are the manuscripts. I'll show you. ये सब आपके ये handwriting सभी मेरी हैंडराइटिंग है। ये इसी माफिक, इसको मैं प्लेकार्ड्स कहता हूँ। तकरीबन 600 प्लेकार्ड्स मैंने अपने हाथों से अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग चीज़ों पर मैंने लिखे हैं, और आप देख सकते हैं 20 डायरीज जो यहाँ पर हैं। ऑल दीज आर मैन्युस्क्रिप्ट विद डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट हेडिंग्स, ऑल डन अल्फाबेटिकली। देयर आर थिंग्स लाइक स्मॉल रेफरल्स, big referrals. There are a lot has been done by me
for the betterment of mankind in due course of time. कितना समय लगा आपको ये सब लिखने में? सर ना पूछें तो ठीक है, जब से मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, यस, लिखने का जो सवाल है वो है पिछले करीब 4-5 साल से मैं लगातार इस चीज़ पर लगा हुआ हूँ, और आज की डेट में भी मैं जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है और जो साइकोन्यूरोबिक्स से रिलेटेड होती है, जो किसी के भले के लिए होती है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, आई इमीडिएटली जॉट इट डाउन इन माई ओन लैंग्वेज सो दैट द मैनकाइंड इज बेनिफिटेड इन ड्यू। आपने हाल ही में एक बुक लिखी है, जरा एक बार उसको दिखाएंगे? आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, सुप्रीम डॉक्टर माइंड मेडिसिन। इसमें मैंने अपने गुरुजी को ऑथर बनाया था, डॉक्टर BS चंद्रशेखर को, और आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज knowledge, I have dedicated this book to him. Not only that, I have given the copyright also to my guru, so that जो कुछ भी मैं, this is supposed to be the Gita for the people who are doing psychoneurobics, and I take pride in saying it's a wonderful thing which has been done. It is wonderful. आपकी रिसर्च के बारे में कुछ बता पाएंगे आप? किस प्रकार की रिसर्च आपने करी है, वो उसमें क्या क्या की खासियत है, विशेषताएं हैं उस रिसर्च की? आम जन के लिए उसको कैसे बेनिफिटेड आप महसूस करते हैं? देखिए, ऐसे है कि मैंने अपने आप को खुद इस चीज़ के लिए तैयार किया हुआ है कि मैं जितने भी लोग आते हैं मेरे पास, नीडी पीपल, उनको मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, मैं उनकी हीलिंग करता हूँ ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको, आई एम एन psychoneurobics expert and international healer. Lunch के बाद में normally I don't take calls because I'm involved with the people all around the world whom I treat on WhatsApp, correction on the mobile or videos or laptop, and the pleasure of the whole thing is, contentment is when they get well, I just want that smile on their face to say, sir, now we are all right. Now, coming on to the research part that you said, every individual for me is the material for research. For normal diseases, we know what the solutions are. But yes, when there is a tricky case where human psychology is also required, when people have mental turmoils and also physical problems, now that is where one would like to do more in-depth study. And I do that. Keep getting the individuals here, keep asking them number of questions, giving them the remedial measures related to psychoneurobics, see the improvement in them, monitor that, and ultimately tabulate the whole thing for my future researchers. इसमें कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिसको आप आम जन के भी साझा करना चाहेंगे? Yes. In fact, right from the beginning, I always say anything that you do in this world starts off from a scratch. In fact, much before scratch, it is the baby cells that we have in our body. So, उस चीज़ पे मैं अभी नहीं जाऊँगा as to how the baby cells affect our thought process, because baby cells से cells बनते हैं बड़े होकर, cells से muscles बनते हैं, muscles से फिर शरीर के अलग अलग organs बनते हैं, फिर system बनता है. So everything is related to that. In this case also, I would say this particular psychoneurobics benefits people should start accruing and imbibe those things right at a school level. Here in this particular school, I am now at the moment speaking Sai Dham. This particular Healy Center is part of the Sai Dham school complex, and यहाँ पर भी बच्चे आते हैं, बच्चे यहाँ रोज आते हैं अलग अलग क्लास के, और मेडिटेशन करते हैं साइकोन्यूरोबिक्स की भी, एंड उनकी मेंटल इन्हेंसमेंट होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, मेमोरी इंप्रूव होती है, उनका फोकस अच्छा होता है, कंसंट्रेशन होता है, और क्या चाहिए बच्चे को? साइकोन्यूरोबिक्स क्या है? साइकोन्यूरोबिक्स बेसिकली, दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन आंसर्ड बाय मी अर्लियर, लेकिन डिपेंड करता है सर, आप जब सवाल पूछोगे मैं तभी जवाब दूंगा. साइकोन्यूरोबिक्स इन्वॉल्व्स साइको विच इज साइकी, विच मीन्स माइंड. न्यूरोबिक्स शब्द जो न्यूरो आया है, that is from central nervous system, which includes brain
and your spinal cord. By the way, that is part of CNS. And BIX is an exercise. Exercise of what? Exercise of the spiritual energy which comes from the Almighty God to earth. Now, to go back slightly to understand it, the spiritual energy in our body is something which is there, but you don't even see it. आपको स्पिरिचुअल एनर्जी निकल जाए, वी आर डेड पीपल, वी आर बस ज़मीन पर लेट जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे. सो और हम सभी मानते हैं, डॉक्टर्स मानते हैं, एवरीबडी एक्सेप्ट्स कि एक एनर्जी नाम की ऐसी चीज़ है जिसे उसको लाइफ फोर्स भी कहते हैं, जिसको आप की भी कहते हैं, CHI की या की इन चाइनीज़ लैंग्वेज भी कहते हैं. ये वो चीज़ है जिसके बिना हमारा शरीर जागरूक नहीं है, वो ठप हो जाता है. Organs keep functioning and very practically अगर कोई डेड बॉडी है, I use the word डेड बॉडी, तो उसके कुछ ऑर्गन्स कुछ घंटे तक, कुछ टाइम तक चलते रहते हैं. उनमें से निकाल कर आप किसी ऐसी शरीर में डाल दो जिसमें ऑर्गन ठीक नहीं है लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी है, it will start functioning. So now you can see the importance of spiritual energy, and that is what I was trying to highlight, कि उस एनर्जी को पूरे शरीर में ले जाकर अलग अलग अंगों में ऑर्गन्स तक पहुंचाना इज थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इट इज प्राणवायु. Not exactly pranvayu. We can go into that a bit later, sir, on pranas and vayus. They're different to separate. Let me finish it off. Okay. I'm not trying to snub, but let me finish it off. So हमने बात कर ली spiritual energy. अब point is कि does the spiritual energy straightway get into our physical body? Now physical body आ गया. There is something known as हाड़ मास की body. This is चमड़े वाली हाड़. There is something known as inner body, which is immediately inside that we can't see it. तो ये जो spiritual energy की मैंने बात की, it goes to the inner body. Inner body and physical body is so intermingled and interconnected कि हम जब spiritual हम जब बात करते हैं हमारी साइकोन्यूरोबिक्स मेडिटेशन की, तो डॉक्टर शेखर उसमें दोनों को इंटरमिक्स करके अलग अलग अंगों का नाम ले लेते हैं. उदाहरण के तौर पर यही एनर्जी is going to our chakras. Now that is where we're now coming on to our psychoneurobics. There are 7 chakras in the body, but they cannot be seen. It is something which is there, but we cannot see it. It is just like MCB. बिजली की करंट आती है, ज़्यादा हो जाती है तो ट्रिप हो जाती है MCB, कम आती है तो फिर ट्रिप हो जाती है. The role of chakras is that. If there is excessive energy, spiritual energy, it trips. ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाए फिर ट्रिप करती है. It manages that. Now, having said that, then the question would be कि physical energy, physical body में और inner body में फ़र्क क्या है? Physical body के अंदर के जो organs हैं उनको आप निकाल कर माइक्रोस्कोप के नीचे में काट के देख सकते हो. इनर बॉडी के जो सो कॉल्ड अंग हैं उनको आप निकाल कर माइक्रोस्कोप के नीचे में नहीं. फॉर एग्जाम्पल चक्रास, यू कैन नॉट डू इट. ये एनर्जी हमारे चक्रास में और शरीर में कैसे जाती है? इट गोज थ्रू नाड़ियाँ. यू कैन सी इट हियर, यू कैन पॉइंट इट आउट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बोर्ड, सर. These are nadis, Ira, Pingla and Sushumna. There are 70,000 nadis. We are talking of only 3. We are only talking of 1, 2 and 3. So these are the nadis which play a role in the movement of the spiritual energy in all over the body. Chinese have given a different setup name, like meridians they call it, but purpose is same. So you will find, once you know what psychoneurobics is, then you would know as to how it can heal your problems. And that's what I do. The difference between me and other healers, definitely the difference is I pass it on. I take 2.5 hours and twice I do such sittings to make every individual who comes here for treatment to understand how the colors actually cure your body, how the colors actually cure your organs, your various problems. Now that is what is required. Once they understand, 50% problem is over, because they know they are going to be benefited by this. इसका परसेंटेज क्या है? 100% या 50 या in between? No, it depends. You see, one of the thing that one must remember is that we have given that in our medication card is that this is the medication card. This is the medication card,
This is the front part, and this is what is given inside. And we have mentioned here that it is self-healing. So what I can do is, I can be a guide, I can be a moderator, I can be influencer. But you have to do, once you understand, that's why I said you'll take 2.5 hours each, twice. Once you understand, 50% problem is over, take it from me. And kindly have a look at this. Please sir, show it here, focus it here. These are the affirmations, which were just like Bible for them. They are beautiful. Everyone, these are the affirmations. दृढ़ वचन है, इसको हिंदी में कहते हैं. और ये ऐसी चीज़ है, अगर आप इसको दिन में 21 बार बोलिए और हर बार 21 बार बोलिए, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में इम्बाइब हो जाती हैं. और जब वो इम्बाइब हो जाती हैं, इन्हीं को तो वो बेबी सेल्स जिसकी मैंने बात की थी वो पढ़ सकते हैं. When they are born, incidentally, our body is made of 65 to 75 trillion cells. And surprisingly, we don't even know about it. What we don't know really is that every minute, 1 million cells are being regenerated. We don't even come to know about it. In 11 months, our whole body will change. आपके मान लीजिए, थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ, जो आपके बीटा सेल्स हैं पैंक्रियाज के अंदर में, देयर लाइफ स्पैन इज 20 to 40 days. आपकी जो स्किन है, इट इज प्रॉब्ली 21 days. आपके जो कॉलोन के सेल्स हैं, इट इज अबाउट 4 to 8 days. सो इस माफिक इनकी ये रीजनरेशन की पद्धति है. तो जो बेबी सेल्स पैदा होती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दे कैन इमीडिएटली रीड दिस बिकॉज दिस एफर्मेशंस आर नाउ प्रिंटेड इन द सबकॉन्शियस ब्रेन. एंड व्हेन एज ए बेबी सेल होते हैं ना, बच्चे अपने संस्कार माँ बाप से सीखते हैं. तो वो उनके माँ बाप हो सकता है कुछ भी हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, 50% काम करने वाले हो, बट व्हेन दे आर बोर्न दे कैन रीड इट एंड दे से आई एम वेल. दे पढ़ लीजिए यहाँ क्या क्या है, एंड अल्टीमेटली से टुडे इज माई डे. सो दैट इज द वे दे ऑपरेट, and therefore they start functioning 100%, and you get well. So simple. ये इलाइटमेंट एक वर्ड है, तो आप इसको साइकोन्यूरोबिस को इलाइटमेंट के साथ जोड़ सकते हैं या जोड़ पाते हैं? देखिए, मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, चक्रास. अगर आप चक्रास की थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी करें और इसमें और डिटेल में जाएं, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू 7 chakras, prominent chakra that we normally talk about. So we will not get in the intricacies of that. So yes, 7 chakras are right from top. This is Sahasrar chakra in Hindi, crown chakra otherwise. This is Agya chakra. This is called third eye. This is Vishuddhi chakra, throat ka. It's called throat chakra. Then is the Anahat chakra, called heart chakra. Then is the Manipur chakra, which is near Nabi or Nabi chakra, is the solar plexus. Below that, 2.5 inches below that is Swadhisthana chakra. It's called sacral plexus. And सबसे नीचे between anus and genital is Hindi में Muladhar chakra and English में root chakra. Now, when we come to the second from top, which is 6 from, गिनती करते हैं तो नीचे वाला एक होता है, तो 6th chakra जो है, that is Agya chakra. The characteristic of the Agya chakra, या neurobics of Agya chakra is enlightenment. So you see the word enlightenment that you're talking of, it exists. It's our ignorance. हम नहीं जानते हैं. What is the age of enlightenment? ये सवाल आपने मेरे से in the passing पहले भी पूछा था. I would say there is no age of enlightenment. It depends on the level of your understanding as to what enlightenment means to you. I can tell you, मैं कहता हूँ स्कूल का बच्चा है, he gets enlightened, he doesn't even know about it. जब उसकी मेमोरी इंप्रूव होती है या उसका फोकस इन चीज़ों से इंप्रूव होता है, he doesn't know, he just मेरे को याददाश्त अच्छी हो गई है. Now that's enlightenment. उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पेरेंट्स बड़े खुश हैं, आपके चेहरे पर खुद स्माइल आ रही है. इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ. शेक्सपियर ने 7 स्टेज ऑफ लाइफ बोला है. इज इट इलाइटनमेंट? Sir, I would not like to comment on what person A, B, or they're all correct in their own fields. I can talk about. Let me finish it, sir. Please do respect. Now,
enlightenment for me is absolutely different to what it is for you or what is for that child who is 6 years of age. It's absolutely. I got enlightened at the age of, I say, at the age of 63. That's the time when I met Dr. Shekhar. But that was an initial शुरू की शुरुआत थी. बट जैसे जैसे मैंने टाइम व्यतीत किया, मेरी उसकी इंटरप्रिटेशन ही चेंज होती रही. आपको बताता हूँ आर्मी की चीज़, बड़ी हैरानगी हो जाएगी. एक छोटी सी पैम्फलेट होती थी डिफेंस की, जब मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था और 19 साल का जब मैं भर्ती हुआ था. आई वॉज मेड टू गो थ्रू दैट. पतली सी, करीब होंगे उसमें 50-60 पेज. I was made to read that again and again and again. And my level of understanding was a small functional platoon जिसके साथ मैं एसोसिएटेड था. सिर्फ 35 आदमी थे और हर बार मैं उसको पढ़ता था और उससे रिलेट करता था कि इसमें डिफेंस में ये करना है, अटैक में ये करना है, एडवांस में करना है, लेकिन प्लेटून के लेवल पर. जब सर मेरी सर्विस बढ़ गई, 4-5-6 साल हो गई और मैं कंपनी कमांडर बन गया, मैं मेजर बन गया, वही किताब when I used to read, I used to interpret it differently at a company level. When I became battalion commander, believe you me, तब तक काफ़ी चेंजेस था, लेकिन मेरे लिए वो फिर भी वो धर्म की किताब थी जिसको मैं बार बार पढ़ता था. अब बटालियन के लेवल पर जबकि 1200, 1300, 1400, 1500 आदमी मेरे नीचे होते थे, उनको कैसे लड़ाई में लेके जाना या क्या करना है, वही किताब. Because my exposure had become different, more enlarged, enlightened, अकल आ गई, एक्सपोजर हो गया, मैंने इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट शुरू की. सो आई थिंक बेस वही रहा, बेस वही रहा उसका. चीज वही थी, उसको मैंने कैसे समझा, आखिर में कैसे समझा, मैंने आपके सामने अर्ज किया. चीज वही थी, लिखा जिसने लिखा था, आई स्टिल सल्यूट हिम. सो दैट इज व्हाट. लिखने की अगर बात करें तो आपने बहुत सा ऐसा मैटर रखा है जिसको आप बुक की फॉर्मेशन में लाने के लिए प्रयासरत हैं. कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक ना लिखी गई और आपकी खुद की इन्वेंशन है वो, जिसको आप साझा करना चाहें? जो चीज़ मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा कि मैंने क्या लिखना था और नहीं लिखी है. जो मैंने लिखी है या जिसके बारे में जानता हूँ उसको मैंने जरूर कागज़ों पर. ये बहुत सारा मटेरियल आपने लिखा है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके पास है, तो इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई चीज़ रिसर्च है आपकी जो अभी तक वर्ल्ड में या आसपास की कंट्री या स्टेट में या आसपास के माहौल में नहीं हुआ हो? सर नहीं हुआ हो, आई डू नॉट, बट आई नो वन थिंग, साइकोन्यूरोबिक्स एज थेरेपी इज नॉट एन ओल्ड वन. एज ए थेरेपी इज बिन प्रोपगेटेड बाय डॉक्टर शेखर. अब साइकोन्यूरोबिक्स में क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा. इसमें इन्वॉल्व हैं 3 चीज़ें, हम रास बेसिकली कहते हैं, कलर्स, मुद्रास एंड साउंड. अब इन तीनों चीज़ों का जब हम सामंजस्य करते हैं, हम कहते हैं साइकोन्यूरोबिक्स अल्टीमेटली एक शक्ल बना दे. बट भाई साहब ये चीज़ तो तब की है जब से राजा महाराजा मुनि वगैरह हजारों साल पहले श्री कृष्ण के टाइम पे भी बताते हैं. हाँ, रास वहीं से शुरू हुआ है. जो डांस नृत्य वो करते थे अपनी क्या बोलते हैं गोपियों के साथ, वो रास का डांस था. अब इसमें क्या इन्वॉल्व था सुनिए, राजा महाराजा के जो महलों में क्या इन्वॉल्व था. तीनों चीजें पहले ही एग्जिस्ट कर, ओनली थिंग पीपल डिडंट नो, समबडी हैज हाईलाइटेड नाउ एंड नाउ वी आर प्रोपगेटिंग. देखिए, राजा महाराजा के दरबार में या उस वक्त लोग बहुत रिच थे, हीरे जवाहरात पहनते थे. जब वो हीरे जवाहरात पहनते थे तो रोशनी के अंदर में जो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रेज का, या रिफ्रैक्शन होता है थ्रू एंड थ्रू जब जाता है, तो वो जो रेज थी वो कलर्ड जेम्स में जाती थी. अलग अलग जेम्स अलग अलग रंग के होते थे, तो अलग अलग रंगों के कारण भी बॉडी के अंदर में जो असर होता है, वही तो हम बता रहे हैं. ये विबग्योर जो बता रहे हैं आपको, इंद्रधनुष के 7 रंग है, वही चीज़ तो ये कर रहे हैं हम. नंबर 1, आपने सुना होगा कि उस वक्त के लोग जो मुनि वगैरह थे, जो लोग भगवान वगैरह थे, सब 1.5 साल 2-2 साल तक जिंदा रहते थे और जवान रहते थे. आपने आज तक कोई ऐसा भगवान देखा है जो को बुढ़ा दिखाया गया हो? क्योंकि वो हमेशा ही इस चीज़ का बेनिफिट. मैं कलर्स की बात की. अब आ जाते हैं मुद्रास. जब वो डांस करते थे, वहाँ आदमी भी करते थे उस वक्त, जब डांस करते तो क्या हो रहा है, ये मुद्राएं तो इस्तेमाल कर रहे हो, हस्त मुद्राएं तो हो रही हैं,
मुद्रा का इस्तेमाल वो करते थे। साउंड, जो म्यूजिक बजता था वो आज का वो नहीं है जो बीटल वाला म्यूजिक है, वो म्यूजिक किसी लय के साथ होता था, साउंड भी वही है। अब क्या हुआ है, डॉक्टर शेखर ने इन तीनों चीज़ों को पिछले कई सालों से उठाकर एक नया रूप दे दिया है, वो साइकोन्यूरोटिक्स। तो ये नहीं कह सकते कि ये नई चीज़ है, ये प्रोपोगेट अभी हुई है, अदरवाइज नए स्वरूप में है, बस नए स्वरूप में है, लेकिन फायदे वही हैं जो कि किसी ज़माने से चलते आए हैं, हमें पता ही नहीं था, हम कई तो चीज़ें वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप द राइट पीपल जो इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से कोई अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो सबको यही कहूँगा, बच्चे, बूढ़े, जवान, दोनों सेक्स के लोग, मैं तीसरे सेक्स के लोगों को भी, कि प्लीज़ ओपन योर माइंड। हम लोग अभी तक बंधे हुए हैं, हमारे दिमाग में यही घुसा हुआ है कि इस दवाई को लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। कई बार प्लेसेबो इफेक्ट भी हो जाता है उसी के कारण, बल्ले बल्ले इट्स ऑल वेल, आई डोंट माइंड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हियर इज अ थेरेपी which doesn't involve any chemicals, it doesn't involve you taking any chemicals from outside. And once you take any chemical from outside within your body, the problem, benefits भी होंगे but problems भी होंगे। बट इस थेरेपी के अंदर में तो आपको हम कोई दवाई दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई दवाई नहीं है? कोई दवाई नहीं है, यू जस्ट डू व्हाट वी आर आस्किंग यू टू डू, विजुलाइज द कलर, उसको फील कीजिए, अनुभव कीजिए। हमारी एक मेडिटेशन है 27 मिनट की, आप उसको शरीर के अंदर में ले जाइए, आहिस्ता आहिस्ता विजुलाइज कीजिए, एंड यू विल फील थ्रिल, यू विल बी एब्सोल्युटली फ्लैबरगास्टेड कि ये क्या हो रहा है, और आप यू विल फील बेटर। एंड रिमेंबर, if you have faith in any therapy, 50% of the battle is already won. What about 100%? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं क्या, rest is our therapy। मैंने तो किसी भी चीज़ में आपको मैं बात जनरल कर रहा हूँ कि अगर आपको उस चीज़ में विश्वास है तो 50% बैटल तो वहीं पर आप जीत जाते हो। बैलेंस के लिए आई एम टॉकिंग ऑफ साइकोन्यूरोटिक्स, यू विल गेट द 100% बेनिफिट। एंड माइंड यू, आई गिव यू अनदर फिलॉसफी। हम तीन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कलर्स का हमारी थेरेपी में 80% बेनिफिट होता है, हम कहते हैं बाकी 20% इज फॉर मुद्रास एंड साउंड। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं एक्सपर्ट हूँ साइकोन्यूरोटिक्स की, थोड़ी देर के लिए और मैं जिसमें अभी पीएचडी कर रहा हूँ मुद्रास में, आप यही सोचिए कि मैं उसका विद्वान हूँ और मैं मुद्रास के ऊपर में एक्सपर्ट हूँ, जैसे योगा के एक्सपर्ट्स होते हैं वगैरह वगैरह। अब जो अगर मैं मुद्रा का एक्सपर्ट हूँ तो मैं, आप कोई पेशेंट आता है तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, आंतरिक हो, बाह्य हो, वो आपकी मुद्रा से दूर होगी, मैं यही कहूँगा और उसी की रेमेडी देता हूँ। इसका मतलब मैं 100% उसको क्योर कर सकता हूँ मुद्रा से। सिमिलरली साउंड थेरेपी, साउंड स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो यही कहेगा you need not worry, I'll cure all your chakras with the help of gong। मोटी आवाज होगी तो ये मूलाधार चक्र है, उससे कम होगी तो स्वादिष्ठान है, ऊपर में आओ तो टिंग की आवाज आएगी। लेकिन ही सेज साउंड से आपकी हर बीमारियां। अब देखो कितना मजा है, हम आपको 100% ऑफ साउंड भी दे रहे हैं, 100% ऑफ मुद्रा भी दे रहे हैं और 100% ऑफ कलर्स तो दे ही रहे हैं। तालियां हो जाए सर, इट्स टू गुड, बिलीव यू मी, हम 300% आपको दे रहे हैं। जबकि हमारा लॉजिक साइकोन्यूरोटिक्स क्या है कि 80% वेटेज इज फॉर द कलर्स एंड 20% फॉर द अदर्स। बट हर स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो कहता है यार मेरी पद्धति तो 100% है। और जब मैं मुद्रा बताता हूँ आपको कि 13 मुद्राएं जो हैं वो नॉर्मल होती हैं, फिर मैंने बात की आपसे प्राणिक मुद्राओं की, फिर मैंने तात्विक मुद्राओं की, 8 तात्विक मुद्राएं उनकी बात की है। लेकिन जब मैं स्टडी करता हूँ, अब देखिए मेरे पास एक किताब है जिस पर कि मैं स्टडी कर रहा हूँ आजकल, मुद्रास की, ये ओशो की है, वेरी गुड बुक। अब इसमें एक अपान मुद्रा इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद स्वादिष्ठान चक्र एंड दैट्स अ रियलिटी, यू कैन सी दैट, यू विल फाइंड द सेम थिंग गिवन इन अवर मेडिकेशन कार्ड विच आई टॉक्ड अबाउट। यू जी। नाउ इफ somebody is good, and I'm sure जो मुद्रा में एक्सपर्ट है, he is good, he may say कि सर don't do अपान, अपान is a common मुद्रा, very good,
kindly do Mahatrik Mudra, like this, which is more effective. Which is more effective, rather most effective. It is good for the ladies' menses, it's good for the piles, it's good for so many things. But it is a specific, for example, fever है, fever के लिए हम कह सकते हैं पृथ्वी मुद्रा भी होती है, जो नॉर्मल मुद्राएं होती हैं. बट इफ आई टेल यू नो सर, पंकज मुद्रा आपने करनी है, वो जब इसमें आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, दिस इज द ओनली प्लेस इन द होल बुक विच सेड इट क्योर्स फीवर. तो मजा आ गया ना स्पेसिफिकेशंस का या स्पेशलाइजेशन का. तो ये तो हमारे 10% में 100% आ रहा है. तो सर कितना मजा लोगे आप, लीजिए और ठीक हो जाइए. लास्ट नोट लिस्ट, अभी इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की जो कोर जो स्पेशलाइजेशन बढ़ती जा रही है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, रिसर्च है, वो इनलाइटमेंट और इन्वायरमेंट है. जी हाँ. ऐसा माना जाता है कि भाई इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता जा रहा है डे बाय डे, और पंच तत्वों को विशेषकर भूमि जल भय गय वह आन है, भूमि गगन वायु अग्नि पृथ्वी जो है हमारे पांच तत्व हैं, उसके अंदर काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है. आज जल का स्तर गुणवत्ता परक नहीं रहा, मतलब पांचों तत्वों की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है. ऐसे में जब आप कॉस्मिक एनर्जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे आप जब आप हील करते हैं, तो उससे उसमें संक्रमण होने के चांस नहीं बनते क्या? आपको मैं इस चीज़ का जवाब देने के पहले ये बताना चाहूँगा, और शायद पता भी होगा आप लोगों को, कि पूरी सृष्टि जो है वो 5 तत्वों से बनी है. जल, याद रखिए ये बेस्ट तरीका है. जल, पृथ्वी, आकाश सबसे ज़्यादा है, वायु एंड अग्नि. इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर भी बना है. आपकी बात का जवाब मिल जाएगा. 5 तत्वों से शरीर बना. अगर सृष्टि में इन 5 तत्वों में किसी में ज़्यादा या वही तत्व कम हो जाए तो त्राही त्राही हो जाती है. जल ज़्यादा हो जाता है अगर संसार में तो सुनामी हो जाता है. जल खत्म हो जाए तो आपको पता ही है, सूखा आ जाता है, और हम बिना पानी के तो हम प्यासे मर जाएंगे. पृथ्वी अगर ज़्यादा हलचल हो जाए भूकंप आ जाता है. पृथ्वी अगर ज़्यादा हलचल ना करे तो सुन्न हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी. आकाश तत्व तो सबसे बड़ा है. उसमें इतनी लेयर्स होती हैं कि अगर वो लेयर्स ना हो, सूर्य की किरणों को ना वो छाने, जब तक वो, अगर वो ना हो तो हम तो गए, विद इन फ्यू सेकेंड विल बी बर्न्ड. एंड अगर वो ना निकले तो वैसे ही यहाँ तबाही हो जाए, वो ठंडक के कारण, क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा हमारे पास ऊर्जा. वायु का वही हिसाब है. वायु ज़्यादा हो जाए तो तूफान आ जाते हैं, तबाही हो जाती है, बिल्डिंगें टूट जाती हैं. और वायु खत्म हो जाए तो सांस कहाँ से लोगे. अग्नि का तो कोई शक ही नहीं है. अग्नि ज़्यादा हो जाए तो आग ही आग चारों तरफ, जंगलात में हो जाती है हर जगह. और अग्नि ना हो तो वही पृथ्वी वाली बात. अब हम वी ऑलवेज वांट अ बैलेंस इन द वर्ल्ड इन दीज तत्वर्स. सिमिलरली इट अप्लाइज टू अवर बॉडी. अब उसमें मुद्राएं आ जाएंगी जो भी मैं जिसमें जाना नहीं चाहता हूँ. सच ये है हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है. अगर हम ये बैलेंस नहीं रखते हैं तो बीमारी आ जाती है. हम डिसबैलेंस होने के, तो हम डिसबैलेंस हो ही जाए. सो ज़्यादा हो जाए तब भी हो जाती है, कम हो जाए तो तब भी हो जाती है. तो उसको हम क्या कहते हैं, उनका इफेक्ट है. तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर में पड़ेगा. और जहाँ तक इन्वायरमेंट का सवाल है, कई चीज़ें इसमें ऐसी जब हम साइकोनोमिक्स की डिटेल में जाते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ से अगर हमारी खेती में पोल्यूशन हो जाती है, खेती में अगर हम साइकोनोमिक्स का इस्तेमाल करें, जो भगवान ने हमें चीज़ें दी हुई हैं उनका अगर हम पास ऑन करें तो पॉजिटिव एनर्जी टू द टू दोस खाद या जो हमारे बीज वगैरह, अच्छा, वो ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ इज बेटर. ट्रांसफर हो सकती है वो एनर्जी. ये हो सकती है, कर रहे हैं यहाँ लोग. अच्छा. ओह यस, इट्स वेरी. मतलब जो पंच तत्व है उसको एनर्जी दी जा सकती है, उससे ली जा सकती है सिर्फ. नहीं, आप अपने शरीर में तो एनर्जी ले ही रहे हो आप. अब अग्नि है. अग्नि इज गॉट अ रोल ऑफ इंश्योरिंग कि आप वायु तत्व को जब ज्वाइन करोगे, अगर वायु ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए आप अग्नि का इस्तेमाल कर रहे हो ना. अग्नि तो आपके शरीर में ही है. एंड वी आर रिड्यूसिंग इट बाय लाइक दिस, विद द रिजल्ट द पेन इन योर बॉडी इज रिड्यूस. पेन इन योर आर्थराइटिस और जॉइंट्स इज रिड्यूस. तो आप यूज़ कर रहे हो ना सर. सो नॉट ओनली दैट सर, इट कैन बी यूज इन द होल यूनिवर्स एज समथिंग. मैंने किया था ये, इसमें काफ़ी स्टडी की हुई मैंने. जब कोविड हुआ था तो मैंने मुद्राज एंड कलर्स में बनाकर लोगों को
I've sent across so much of information कि किस कलर से आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस किस चीज़ से कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है, किस चीज़ से आयरन ज़्यादा हो सकता है. All these things are there in the mudras and the colors. So places like Africa, जहाँ पर की बीमारियाँ ही बीमारियाँ होती हैं, places the Middle East, some countries are very poor, some are very rich, but that is a place where we can use this free of cost. Only thing is कोई will होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए ताकि we can pass on to those people. I'm not now going to explain to you. Otherwise, if you just see my hands, please have a look at it. My hands are normal, and I'll just say, come, sweetheart. I'm asking the spiritual energy to come. मेरे हाथ लाल हो रहे हैं, आपको लाल नजर आएंगे, मेरे हाथ लाल हो रहे हैं. So ये जो चीज़ हो रही है, this is on call. People call it that I am a blessed man. Damn it, I am not the only one. You can do the same thing. Only thing is the mode of doing it slightly different. When we say self-healing, we are teaching you to get that particular spiritual energy in your body and heal yourself. So can these people do is who are poor, who don't have the proper nourishment. What is the difference between energy and spiritual energy? Energy is ऊर्जा. ऊर्जा आपको पता ही है, एनर्जी जो भी आप नॉर्मल टर्म है. स्पिरिचुअल एनर्जी इज समथिंग यू कैन नॉट सी, यू कैन फील, एंड दैट इज समथिंग विच इज, उसके बिना हम जिंदा भी. नॉर्मल ऊर्जा नहीं है तो आपको ऑल्टरनेटिव मिल जाते हैं. स्पिरिचुअल एनर्जी का अभी तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला, आज तक नहीं मिला. ये जो मैकेनिज्म चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसमें कौन सी ऊर्जा काम करती है? मैकेनिज्म मतलब ये जो दुनिया में भौतिक जगत के अंदर जो मैकेनिज्म काम करता है, जो मैकेनिकल या दूसरे तरह के जब आप मैकेनिकल बोलते हो, यू आर आंसरिंग इट योरसेल्फ. नहीं, उसके अंदर ऊर्जा तो है ना. वो ऊर्जा, आई एम नॉट डिबेटिंग दैट ऊर्जा इज समथिंग विच यू हैव आइदर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड. अब अलग अलग तरीके की ऊर्जा बन रही है. अब गाड़ी को चलाना, उसके लिए ऊर्जा चाहिए. अब आप बोल रहे हो कि पेट्रोल से नहीं चलाएंगे हम, आप डीजल ले आए. हम डीजल से नहीं चलाएंगे, उसमें पोल्यूशन होती है. आप ये फोलियाज जो है उनसे ले आए, वो नहीं चलाना. लोग पानी से चलाना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज ए फॉर्म ऑफ ऊर्जा. When you talk of spiritual energy, the word spiritual itself is something which takes you beyond the realm of normal argument. हम पहले ही कह रहे हैं कि ये वो एक ऐसी एनर्जी है, परमपिता परमेश्वर से मिल रही है, जो इन सबसे जो आप में है, बट यू हैव नेवर सीन इट. कनेक्ट नहीं है ही नहीं. आपको पता कि कहाँ है, कैसी है, क्या लगती है. लेकिन जैसे वो चीज़ नहीं मिलती, हम कहते हैं ना आत्मा चली गई, वो अलग चीज़ है. फेरीज इसके लिए, इस कनेक्टिविटी के लिए या इसको लेने के लिए किसी मेंटोर की जरूरत है या डायरेक्ट ले सकते हैं? नो, यू गेट इन्वॉल्व. आई एम नॉट ए मेंटोर. आई एम इफ यू कम हियर फॉर सम ट्रीटमेंट और सम प्रॉब्लम, आई जस्ट टीच यू द मेथड एंड देन यू कनेक्टेड योरसेल्फ. आप भी अपने गुरु को इसका श्रेय देते हैं, तो बीच में मेंटोर तो आपका भी है. नो, आई सेड यू, आई एम नॉट ए मेंटोर. आई एम जस्ट, आई हैव मेड अ वेरी क्लियर स्टेप. यू आर जगलिंग विद द वर्ड्स. आई एम नॉट. मैं एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डॉक्टर शेखर वो कहते हैं कि उनकी जिनसे उन्होंने सीखा है, उनके जो सिखाने वाले थे, ये चीज़ नहीं, बाकी उन्होंने उनको कहा था कि गुरु कभी मत बनना. जिस दिन तुम गुरु बन जाओगे तुमको गलतफहमी हो जाएगी. ये उनके अल्फाज हैं. लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूँ, जबकि वो मेरे से बहुत जूनियर है इंडियन आर्म फोर्सेज में. बिकॉज आई फील आई मस्ट पुट हिम एज अ पर्टिकुलर पेडेस्ट्रियल वेयर आई से दैट ही कांट डू एनीथिंग रॉन्ग. So I have that respect for him. And that when I say I am not a mentor, take it from me. When I am teaching you all these or anybody these things, this is from the core of my heart. And I am telling you, I throw an open challenge. जो चीज़ें मैंने बताई हैं, normally people do it. They know, maybe knowing it, they do it for money. मैंने जो शुरू में बोला कि मेरा जो उद्देश्य है वो है, निःशुल्क भी तो है, निष्काम भी तो है, निश्चल भी तो है, निस्वार्थ भी तो है. सो मैं करता हूँ और मैं खुश हूँ. और कोई मैसेज हमारे द राइट पीपल के माध्यम से अगर आपको देना सर, आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि लोगों को एनलाइटनमेंट के बारे में अगर ज्ञान ग्रास रूट लेवल से भी शुरू हो जाए, तो वो उसका जो बेस है वो इट बिकम सॉलिड. वो इंटरप्रिटेशन अपने आप ही करता रहेगा, लेकिन उसको पता होना चाहिए बच्चों को कि ऐसे करने से ऐसे होता है. शुरू में नहीं समझेंगे, जैसे ही वो परिपक्व हो गए वो समझना शुरू कर जाते हैं.
इस विषय पर द राइट पीपल कौन है? Sir, right people are the one who are enlightened. ये ऐसा विशेष सर्कल है. मैं क्या, अभी अनपढ़ के पास आप चले जाओगे, भिखारी के पास सामने, जिसने सारी उम्र भीख ही मांगी है, ही मे बी लॉर्ड इन भिखारी, पैसा कमाता होगा, लेकिन उसकी अकल तो, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ मेंटल कैलिबर, उसकी सोच जो है वो इनलाइटेंड हो सकता है. इफ इज भिखारियों का लॉर्ड है, वो करोड़ों में कमाते हैं. I'm not debating that. Such people are upward, exceptions. But generally speaking, the people who are educated, people who are mature, people who understand what life is, people who have a feeling of doing good for the society. जिनको किसी चीज का करने का हाँ, तरीका good for the पता लगने society, लगे, पता और लगने उनको लालच ना हो. ये मेन चीज. जहाँ लालच आ गया, जैसे मैंने कहा, people will tell maybe the same thing, 80% of what I have told you, but they'll do it for money. I don't do it for money. It's not I syndrome. मैं दिल से बोल रहा तो हूँ. सामने वाला उसकी कदर कैसे करेगा अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो? यही तो रोना है. रेकी के अंदर में, रेकी के गुरु ने सिखाया, किताबों में आया है कि जब उन्होंने शुरू में किसी गांव में लोगों की मदद की थी, गांव वाले जब तक ठीक हो रहे थे तो ये महान व्यक्ति था. जब वो सब ठीक हो गए, उन्होंने इनको पूछा नहीं. तो उन्होंने उस वक्त, रेकी के गुरु ने, के नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब भी आप रेकी करो, किसी का भला करो, टेक समथिंग इन रिटर्न. मेरी फिलॉसफी हट के है. वो अपनी जगह पर ठीक है, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ. मैंने आपको बोला मेरी भी एक्सपेक्टेशन है. मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? इज द ब्रॉड स्माइल विच आई वांट फ्रॉम पीपल वंस दे गेट वेल. दैट इज माय पेमेंट. एंड यू कैन हैव अ लुक देयर, इट सेज द स्माइलिंग फेस. Now that itself will tell you as to what my philosophy about this is. And I remember when I was a small child, 8 years old, long time back, way back in early 50s, there used to be a lady known as Pat Gay who used to come on the radio and say in the morning during the BBC, probably BBC tha, at 8 o'clock in the morning, and she used to start off her program by saying, when you find somebody without a smile, give them one of yours. Beautiful. And that's what I believe in. तो आपका ये जो स्माइल है और इसका जो एक्सपीरियंस है, क्या इलेक्टेड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन को एज एक्सपर्ट मिल सकता है? वाई नॉट, टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट. मैंने जो कुछ भी बताया है और जो कुछ भी आज तक मैं लोगों को बता रहा हूँ, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. ऐसा तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड वाले बोलते हैं. आई एम स्लाइटली बियॉन्ड दैट, बिकॉज शायद मेरे पास इतना है कि मैं अपना गुजारा कर सकूँ. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. देयर इज अ लॉट वन कैन टॉक अबाउट, एंड बिलीव यू मी, अभी तक मालूम पड़ गया होगा कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ. आई डोंट माइंड. इट्स ऑल फॉर यू पीपल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू सर. थैंक यू.